Hello students, in today's video we are going to start the third type of non-finite verb, and that is participle. Dear students, you need to pay your keen attention here as participles are considered the most difficult topic in English. In my opinion, it is not very tough. I'll try to make you understand in an easy way. So let's get started. Participles. So what the participles are? Participles functions as verbs and adjectives. Participle कैसे फंक्शन करते हैं? या तो वो वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे या फिर वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शंस करेंगे सेंटेंस में. And there are three types of participles. Present participle. Present participle means v1 plus ing. Okay, either you can say v1 plus ing or v4. The second is past participle. So past participle means v3. And the third type is perfect participle, and perfect participle will be having plus v3. Look at the examples of participles. Look at dancing doll. As we have discussed that participles function as an adjective. So look at it. So what the adjectives are? The words which describes noun and pronoun are called adjective. Similarly, here the verb will be describing either a noun or a pronoun. So first of all, look at the noun. The doll is noun here. Okay. So what kind of doll it is? Dancing. Okay. So it is clear. Means V4 is there. Okay, ing is there, and this v4 is describing your noun. It means it is a participle here. The little boy thinking it was safe begin to swim. So here thinking has been used as a verb, so it will be also a participle. The peon was carrying a broken chair. So look at this broken. What kind of chair? चेयर कैसी थी? ब्रोकन, टूटी हुई थी. सो दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग योर नाउन, सो इट विल बी कॉल्ड अ पार्टिसिपल. Students, today we will do only present participle. So what the present participle is? V4 functions as verb or adjective. Remember, present participle means only V4 or V1 plus ing. Okay, and that will function as a verb or adjective. आपकी जिसमें ing लगी होगी वर्ब में, वो वर्ब, ठीक है, वो ही उसी वर्ब को आप क्या कह सकते हो? पार्टिसिपल कह सकते हो. और वो वर्ब किसकी तरह फंक्शन करेगी? ईदर वर्ब और एन एडजेक्टिव. I like looking at twinkling stars. Okay, so look at the example. What is the noun here? Stars noun here. Okay, so what kind of stars? Stars कैसे हैं? ट्विंकलिंग, जगमगाते हुए. तो देखो, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है? V4 होनी चाहिए. सो दिस इज V4 एंड इट इज डिस्क्राइबिंग योर नाउन एज वेल. और ये नाउन को भी क्या कर रही है? डिस्क्राइब कर रही है. दैट्स वाई it will be present participle. Drinking water is available here. Drinking water is available here. So what is the noun here? Water. Water noun है. And what kind of water? Drinking. Water कैसा है? पीने वाला है. So drinking यहाँ पे V4 है और ये नाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है. सो आप इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल. Now the confusion is this: we have discussed gerund also consists of V4. gerund का मतलब भी क्या होता है? V4 ही होता है, उसमें भी ing होगी. So how will you differentiate between gerund and participle? That you need to look now. So what is the difference between participle and gerund? Participle और gerund में क्या difference होगा वो हम देखेंगे. So remember, gerund functions as a
नाउन। जेरेंट का फंक्शन क्या होता है? नाउन की तरह फंक्शन करता है, वो एक नेम की तरह फंक्शन करेगा। एंड पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, और पार्टिसिपल किसकी तरह फंक्शन करेगा? एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। That is the only main difference between present participle and gerund. Look at the example. I like riding horse. I like riding horse. Dear students, look, ज़्यादातर आपको जेरेंट में जेरेंट की जस्ट बाद नाउन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको नाउन मिलता है तो आप कैसे देखोगे? पार्टिसिपल्स में ये मैंडेटरी है कि जिस भी नाउन को वो डिस्क्राइब करेगा उसके जस्ट बाद वो ही नाउन आएगा। आई लाइक राइडिंग हॉर्स। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसके बाद नाउन है। ओके, नाउन है, हॉर्स है। अब आपको ये देखना है कि नाउन भी आ गया, V4 भी है, तो ये जेरेंट है या पार्टिसिपल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये हॉर्स राइडिंग है। क्या ये हॉर्स राइडिंग है? हॉर्स राइडिंग हो सकता है? नहीं, राइडिंग तो कोई और करता है ना। यस, ओके। सो यहाँ पे राइडिंग करने वाला कोई और है। आई लाइक राइडिंग हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है राइडिंग, ये क्या होगा? एक जेरेंट होगा। या ठीक है। अब और आप कैसे सेटिस्फाई करोगे कि ये जेरेंट ही है? ठीक है, जेरेंट हमेशा फंक्शन करता है नाउन की तरह। तो नाउन की तरह फंक्शन करता है तो आप इससे वोट का क्वेश्चन करो। वोट डू आई लाइक? राइडिंग हॉर्स। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड क्या हो गया? नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? जेरेंट कहेंगे। ठीक है। द सिंगिंग गर्ल वॉज इंजॉइंग द म्यूजिक। द सिंगिंग गर्ल वॉज इंजॉइंग द म्यूजिक। देखो, यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये गर्ल कैसी है? सिंगिंग है, मतलब वो गाना गा रही थी उस टाइम पे। तो अब देखो, ये जो वर्ड है इसमें आईएनजी भी है, इसके जस्ट बाद नाउन भी है, तो ये वर्ड इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। आप इसे क्या कहेंगे? अ पार्टिसिपल। माई फादर इंजॉयज रीडिंग बुक्स। ओके, माई फादर इंजॉयज रीडिंग बुक्स। सो जस्ट you need to see here books. क्या ये बुक्स रीडिंग है? बुक्स रीडिंग है? नहीं, बुक्स रीडिंग कैसे हो सकती हैं? ठीक है, सो हियर दिस रीडिंग इज नॉट डिस्क्राइबिंग द बुक। बुक को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ये। सो हियर इट विल बी कॉल्ड पार्टिसिपल और जेरेंट। ओके, इट विल बी आ जेरेंट हियर। ओके, और इसे ये देखने के लिए कि जेरेंट ही है तो आप उसे वोट का क्वेश्चन करो। माई फादर इंजॉयज रीडिंग बुक्स। वोट डज माई फादर इंजॉय? रीडिंग बुक्स। सो इट विल बी आ जेरेंट हियर। यू इंजॉयड स्लीपिंग। यू इंजॉयड स्लीपिंग। अब देखो, सबसे पहले तो सबसे अच्छा क्लू तो ये है कि इसके जस्ट बाद कोई नाउन ही नहीं है। नाउन नहीं है तो ये पार्टिसिपल नहीं है। आप इसे क्या कह सकते हैं? जेरेंट कह सकते हैं। नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? वर्ब से वोट का क्वेश्चन पूछो। व्हाट डिड यू एंजॉय? स्लीपिंग। वोट का आंसर आपको मिल रहा है। सो इट हैज बीन यूज्ड हियर एज अ जेरेंट। ओके, स्विमिंग पूल इज देयर इन आवर स्कूल। अब देखो, ये आईएनजी फॉर्म है, इसके जस्ट बाद क्या दिया हुआ है? पूल दिया हुआ, नाउन है। तो क्या ये पूल को डिस्क्राइब कर रहा है? पूल पूल कैसा है? स्विमिंग है। यस, दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग पूल। ये वर्ड पूल को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे? डिस्क्राइब कर रहा है तो मीन्स एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? पार्टिसिपल। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरेंट। पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड जेरेंट फंक्शंस एज अ नाउन। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फाइनाइट वर्ब। अब ये भी तो है कि आईएनजी वाली फॉर्म्स फाइनाइट वर्ब भी हो सकती हैं। सो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या
finite verb है. It's very easy. If before has been used as a finite verb, okay, before them always you will find these helping verbs as we have discussed earlier as well. अगर वो फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती हैं बिफोर, तो इनसे जस्ट पहले आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी वहाँ पे हमेशा. इज, एम, आर, वोज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन. Okay, look at the example now to understand this in a better way. The teacher was calling her. The teacher was calling her. So सबसे पहले तो ये देखो, calling के just पहले क्या आ गया, was आ गया. was आ गया, तो ये वर्ब कौन सी हो गई, फाइनाइट वर्ब है. आई लुक्ड एट द रिंगिंग फोन. तो रिंगिंग से जस्ट पहले देखो क्या वोचवर है, इजेमार है, विल बी, शैल बी है, नहीं है, तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. अब नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जेरेंट है या पार्टिसिपल है, ये आपको देखना है. तो ये आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखो कि इसके जस्ट बाद नाउन है. अगर वो उसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो पार्टिसिपल है, और अगर वो उस नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो वो जेरेंट है. तो फोन कैसा था, रिंगिंग था, बजता हुआ फोन था. यस, इट इज डिस्क्राइबिंग. फोन कैसा था, बजता हुआ था, रिंगिंग फोन था. सो ये फोन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सी इज कुकिंग मील. सी इज कुकिंग मील. कुकिंग से जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. सो यहाँ पे ये अनडाउटली कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट तो जेरेंट है और ना ही ये पार्टिसिपल है. नाउ लुक एट योर होमवर्क. State whether the underlined verbs are finite, present participle और gerund. आपको सबसे पहले ये बताना है यहाँ पे कि जितने भी underlined verbs हैं ये finite verb है, present participle है या फिर gerund है. मैं बता देती हूँ एक बार. अगर वो finite verb है तो उनसे just पहले आपको helping verbs मिलेंगी. अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उनके जस्ट बाद एक नाउन मिलेगा, और उसी नाउन को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. और अगर वो जेरेंट है तो वो एक नाउन की तरह यूज होगा. ठीक है, इसके बाद आपको नाउन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता. अगर नाउन मिलता है तो वो कभी भी जेरेंट उस नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है. सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज लिसन टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई फेवरेट हॉबी. आपको लिसनिंग को बताना है कि यहाँ पे ये कैसे फंक्शन कर रही है. द गार्डनर इज वोटरिंग द प्लांट्स. आपको यहाँ पे वोटरिंग को बताना है कि वोटरिंग यहाँ पे किसके जैसे फंक्शन कर रही है. लुक एट द रनिंग बॉय. हियर यू नीड टू टेल रनिंग. रनिंग को बताना है कि ये फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंट है. सी लाइक्स प्लेइंग. यहाँ पे आपको प्लेइंग को बताना है कि ये कैसे फंक्शन कर रही है. द मदर रैन टुवर्ड्स द क्राइंग बेबी. द मदर रैन टुवर्ड्स द क्राइंग बेबी. तो यहाँ पे आपको क्राइंग को बताना है कि क्राइंग यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरेंट है.